السلام علیکم، میرا نام ہے مبشر لقمان اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ ایک ویڈیو میں نے وی لاگ کیا تھا یہاں پہ کچھ دن پہلے، ایکچولی کوئی 2 ہفتے کے پہلے کے قریب، جس میں سروسز ہسپتال لاہور کے اندر ہونے والی کرپشن کی میں نے نشاندہی کی تھی اور اس میں جو لوگ ملوث ہو سکتے ہیں ان کا بھی میں نے ذکر کیا تھا۔ اچھا، بڑا ہوا اس کے اوپر، اور ویڈیو جو تھی وہ بہت زیادہ چلی، اور خاص طور پہ میڈیکل کمیونٹی اور میڈیکل فریٹرنیٹی جو ہے اس میں وہ بہت چلی، پیرامیڈکس میں چلی، اور لیب ٹیکنیشینز انہوں نے بھی اس کو بڑا دیکھا بھی، اور مجھے انہوں نے کامنٹس وغیرہ بھی بھیجے اپنے، جو لوگ مجھے جانتے تھے۔ لیکن اس کا ہوا ہی ہے کہ ہم نے بڑی کوشش کی کہ اس میں جس لوگوں کا ہم نے ذکر کیا تھا، خاص طور پہ ڈاکٹر محمود ایاز کا، کہ وہ ہمارے ساتھ اگر آتے ہیں یہاں پہ تو ہم ان کا پوائنٹ آف ویو جو ہے اس کو ضرور لیں۔ اچھا، ڈاکٹر محمود ایاز کی طرف سے مجھے کئی دوستوں نے، ہمارے کامن فرینڈس ہیں، ہم لاہور میں رہتے ہیں تو آبویسلی سب کے کامن دوست ہوتے ہیں، تو کامن فرینڈس نے، کئیوں نے، ایک نے نہیں، کوئی 4-5 نے مجھے بہت دفعہ کال کی، کوئی 1-2 تو مجھے ملنے بھی آئے ہیں اسپیشلی۔ ان کا یار جو مرضی ہو جائے، پروگرام نہ کرو۔ تو میں نے ان کو کہا کہ جی سروسز میں ہو رہی ہے کرپشن، اور ہو رہی ہے دبا کے، اور ہو رہی ہے کروڑوں کے حساب سے، اور کئی سالوں سے ہو رہی ہے، تو میں تو اس کے اوپر کروں گا، اور میرے تو کئی اس کے اوپر پروگرامز تیار ہیں۔ میں صرف ویٹ ان کا یہ کر رہا ہوں کہ میں یہ دکھا سکوں کہ جناب پہلے آ جائیں۔ تو موقف میں نے ان کو دیا، ان کا وقت لیا، یعنی اب ان کے سامنے میں الزامات لگانا چاہتا ہوں۔ مثلاً میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سروسز ہسپتال میں کروڑوں کی مشینری منگائی گئی، اور مشینری لوگوں کو لگا نئی ہے، کچھ کو پتا تھا، انہوں نے کہا نہیں یوزڈ ہے، لیکن اصل میں وہ کباڑا تھی، وہ بالکل کباڑ تھی، کاٹ کباڑ تھی، اس کو زنگ آلود مشینری تھی۔ میں آپ کو اس کی تصویریں دکھا دیتا ہوں، اس کی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں، کیونکہ یہاں پہ جو بھی بات میں کروں گا وہ میں ثبوت کے ساتھ کروں گا۔ اچھا، ایک پرٹیکولر ایشو کو میرے سے جوڑا گیا، انہوں نے کہا کہ جی مبشر لقمان شاید اس وجہ سے کر رہے ہیں، اور ایک ویڈیو جو ہے ایک ڈاکٹرز کی آپس کی لڑائی جو تھی اس کو لا کے وہ دکھایا گیا لوگوں کو۔ اچھا، ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہم کھرا سچ والے جو ہیں، ہم پھر جب جس چیز کے پیچھے پڑتے ہیں تو پھر اللہ کا کرم ہے کہ اس کو نکال کے رکھتے ہیں دم۔ تو جو ویڈیو ڈاکٹر محمود ایاز نے لوگوں کو دی اور لوگوں کو دکھائی، اور جس کی وجہ سے انہوں نے کچھ لوگوں کو ٹرمینیٹ وغیرہ کیا، کچھ کو نوٹسز وغیرہ دیے، وہ تھی 30 سیکنڈ کی، 40 سیکنڈ کی ویڈیو۔ لیکن میرے پاس وہ اوریجنل آج اتنے مہینوں کے بعد وہ پوری کی پوری ویڈیو آ گئی، جو سروسز کے اپنی CCTV فوٹیجز کی کمپائلڈ ویڈیو ہے۔ لیکن ہوا کیا، میں اب آپ کو اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاؤں۔ ینگ کنسلٹنٹ ایسوسی ایشن ہے، اس کے صدر کے حوالے سے ایک ایسا واقعہ ہوا ہے جس کے بعد MS سروسز ہاسپٹل اور پرنسپل کی جانب سے ایک ایڈٹ کی ہوئی، ایڈیٹڈ CCTV فوٹیج جو ہے وہ میڈیا کو بھی دی گئی، اور میڈیا کو، اب جب میڈیا کے پاس سرکاری عہدیدار اور کالج کے پرنسپل وغیرہ کی طرف سے یہ چیزیں دی جاتی ہیں تو وہ ان کے لیے بڑی قابل احترام ہوتی ہیں، اور وہ صحیح سمجھتے ہیں ان کو، اور اسی واقعے کو پھر بنیاد بنا کے MS اور پرنسپل نے YCA کے صدر جو تھے ڈاکٹر حامد بٹ، ان کو سروسز ہاسپٹل سے سسپینڈ کر دیا۔ لیکن یہیں پہ بات ختم نہیں ہوئی، اور یہ مکمل بات نہیں ہے۔ اصل سٹوری میں آپ کو بتاتا ہوں، حقائق اور سچ ہیں کیا، ثبوتوں کے ساتھ۔ میرے پاس آج پوری وہ ویڈیو موجود ہے اندر کی، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے پاس سارے واقعے کے بغیر ایڈٹ کیے ہوئے CCTV فوٹیج موجود ہے، جس کی ساری کہانی سے پردہ اٹھ جاتا ہے۔ ایسا کرتے ہیں کہ اب میں سپلٹ ونڈو میں دوسری سائڈ پہ وہ ویڈیو بھی چلاتا ہوں، آپ میری بات سن رہے ہیں، اور ساتھ ویڈیو میں دوسری ونڈو میں آپ کو وہ ویڈیو بھی دکھاتا ہوں، تاکہ خود بخود آپ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ سچ یہ ہے کہ ڈاکٹر حامد بٹ کے پاس سروسز ہاسپٹل کے پیرامیڈیکل سٹاف والے آئے، اور انہوں نے آ کے کہا کہ کرونا وارڈ کے بیڈ ہم لوگ تیار کرتے ہیں، صفائی ستھرائی ہم لوگ کرتے ہیں، رنگ و روغن ہم کرتے ہیں، پہلے تو ہم کو انٹرنیشنل ریکمنڈیشنز کے مطابق سیفٹی کٹس مہیا کریں، اور مزید یہ کہ تمام ملازمین کو کہ نام کرونا انسینٹیو لسٹ میں شامل کیے جائیں، تاکہ ان کو بھی کوئی انسینٹیو ملے بیچاروں کو جو کر رہے ہیں وہاں پہ، تاکہ وہ لوگ اس سے مستفید ہوں جنہوں نے کرونا کے تناظر میں کوئی کام کیا، نہ کہ وہ جو کام کر ہی نہیں رہے اور وہ اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اب ہوا کیا کہ ڈاکٹر حامد بٹ نے سروسز ہاسپٹل کے میڈیکل سٹاف کے مطالبات کو پرسو کرنے شروع کیا۔ اچھا، یہ بڑی تکلیف دہ بات ہوتی ہے، اور کسی بھی مینجمنٹ کے لیے ایسی باتیں بڑی تکلیف دہ ہوتی ہیں، کیونکہ اوپر سے منسٹری کا ایک حکم آ رہا ہوتا ہے کہ جی ہم نے 2000 کٹس دینی ہے، اور یہ PP کٹس جو ہیں اور یہ سارے اسپتالوں میں ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہونی ہے، 100 کٹس اور 125 کٹس ایک کو، ہر ایک کو نہیں دی جا سکتی۔ لیکن ایکسپوز تو ہر ڈاکٹر ہو رہا ہے، اور کتنے ڈاکٹرز جو ہیں اور وہ شہید ہو گئے بیچارے،
कोरोना पेशेंट्स का इलाज करते करते। बहरहाल हामिद भट्ट ने क्या किया, डॉक्टर हामिद भट्ट ने, उन्होंने एमएस डॉक्टर इफ्तिखार को टेलीफोन पर कॉल किया, पहले उनके मसाइल हल करने के लिए दरख्वास्त की। एमएस ने उनको कहा आप लोग सब मेरे ऑफिस में आ जाएं, अब जो मुमकिन होगा हम कर लेंगे इसको। अब इसी दौरान प्रिंसिपल ऑफिस में, महमूद अय्याज साहब के ऑफिस में एक हंगामी मीटिंग बुलाई गई। उसमें प्रोफेसर वारिस फारूका थे, एमएस डॉक्टर इफ्तिखार थे, उनके हिमायती डॉक्टर्स काफ़ी शामिल थे, वो मेरे भी दोस्त हैं उनमें, इसलिए मुझे उस मीटिंग का वर्ड टू वर्ड चीज़ पता है। अब इस मीटिंग में मंसूबा बनाया गया कि सारे ग्रुप में, जिसमें डॉक्टर हामिद भट्ट और पैरामेडिकल के सदर जो है शेख नुसरत और दीगर ओहदेदारान शामिल थे, इनको ज़रा सबक सिखाया जाए और अच्छा सबक सिखाया जाए, हमेशा के लिए इनको ऐसा सबक सिखाएं कि इनकी ज़ुबान खामोश हो जाए। क्योंकि ये ग्रुप आए दिन क्या करता था, करप्शन की सज़ाएँ बुलंद करता था कि जी सर्विसेज में करप्शन हो रही है, दवाइयों में करप्शन हो रही है, जी फलाह में करप्शन हो रही है, जी ठेकों में करप्शन हो रही है, कार पार्क के ठेकों में करप्शन हो रही है। बहरहाल मज़ीद ये कि प्रिंसिपल महमूद अय्याज के ऑफिस में होने वाली मीटिंग के बाद एमएस और प्रिंसिपल के हिमायती डॉक्टर्स कैफेटेरिया के बाहर जमा हो गए। अच्छा, फिर प्रिंसिपल ऑफिस में तश्कील किए जाने वाले प्लान को अमली जामा बनाने के लिए मज़ीद डॉक्टर्स को बुलाया गया, उनको जिम्मेदारियाँ दी गई कि कोई बच ना पाए इस बार। और जैसे ही ये फलां डॉक्टर जो हैं वो पैरामेडिकल स्टाफ के हमरा अपने मुतालबात लेके एमएस के ऑफिस पहुँचे, तो एमएस अपने ऑफिस में मौजूद नहीं होगा, और वो नहीं थे, उनको टाइम दे के वो नहीं थे बाय द वे। और फिर डॉक्टर हामिद भट्ट और एमएस ऑफिस में वहाँ पे जो उसके साथ एडजस्टेंट उसके सिक्योरिटी गार्ड का ऑफिस है वो वहाँ जाके बैठ गए, और साथ वो पैरामेडिक वाले जो थे उनके सदर वगैरह वो भी बैठ गए। अब कुछ देर के बाद एमएस डॉक्टर इफ्तिखार जो हैं एक बहुत बड़ा टोला लेके एक मुश्तैल ग्रोह की क़यादत करते हुए खुद अपने दफ्तर में आई। अब पैरामेडिकल के लोगों ने अपने मुतालबात पेश करना शुरू ही किए तो मुश्तैल डॉक्टर्स ने पहले तो उन पर हमला किया, नाज़ेबा कलमात इस्तेमाल किए, गालम गलोच की काफ़ी ज़्यादा। पढ़े लिखे लोगों से हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन हुआ अनफॉर्चुनेटली। गालम गलोच जब शुरू हुई और साथ ही सदर पैरामेडिकल सर्विसेज हॉस्पिटल शेख नुसरत और उनके मीडिया सेक्रेटरी बिलाल भट्ट को एमएस ऑफिस के अंदर ही एमएस जो थे डॉक्टर इफ्तिखार के सामने मारना, पीटना और ज़दकूब करना शुरू कर दिया, और बुरी तरह। हालात इतने ख़राब हुए कि सदर पैरामेडिकल शेख नुसरत को एमएस ऑफिस के साइड रूम में खुद को अंदर से लॉकअप करना पड़ा ताकि किसी वो जानी नुकसान ना हो और वो बच जाएं। और उनको उस दिन तो बहुत उन्होंने अपने आप को ताला बंद कर लिया अंदर। वहाँ से उन्होंने 15 पर 3 बारी कॉल की, 3 बारी 15 पे कॉल की। लेकिन हमें पता है आजकल 15 कितनी इफेक्टिव है। आप वो बेचारी मोटरवे पे बच्ची का हमने देखा, हमारी बहन का कि उसकी कॉल के साथ क्या हुआ और लोगों की कॉलों के साथ क्या हो रहा है, लेकिन वही हुआ कि कोई रिस्पांस नहीं हुआ। अब उसके कुछ देर बाद ही मुश्तैल हजूम जो है वो एमएस ऑफिस से निकल के सिक्योरिटी गार्ड के ऑफिस में आ गया, जहाँ यंग कंसल्टेंट एसोसिएशन के सदर हामिद भट्ट भी मौजूद थे। यहाँ फिर डॉक्टर्स ने वही हरबा इस्तेमाल किया, गालम गलोच की, और दसियों लोग हमलावर हो गए एक बंदे पे। ये फुटेज आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये मैं कोई ज़ुबानी कलामी बात नहीं कर रहा। आप इस फुटेज में खुद इसको रोक के, मैं अलग से भी इसको अपलोड कर सकता हूँ, फुटेज को अलग से भी अपलोड कर दूंगा अगर आपको प्रॉब्लम हो, ताकि आप लोग रोक के फ्रेम बाय फ्रेम देख सकते हैं। और ये मेरा चैलेंज है कि कोई मुझे बताए कि ये एडिटेड फुटेज है कि अनएडिटेड फुटेज है, ताकि सबको पता चले दूध का दूध। और यहाँ पे आप देखें कि वो जो डॉक्टर भट्ट हैं वो बिल्कुल अकेले थे, उनके पास कोई हथियार नहीं था, कुछ नहीं था, जबकि उनको प्रोवोक किया गया, ज़दकूब करके उनके चेहरे को नोचने की कोशिश की जा रही है। फिर उनको जो आपको आवाज़ नहीं आ रही वो ये कि जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही थी। साथ ही ये भी कहा जा रहा था कि बाहर आ जाओ वरना तुम्हें इस अस्पताल से निकलवा देंगे, नौकरी से फारिग कर देंगे, क्योंकि प्रिंसिपल और एमएस का हुक्म है ये। और ये वो लोग कह रहे थे। अब ये एमएस बता सकते हैं इसका, या प्रिंसिपल साहब बता सकते हैं कि उनका हुक्म था कि नहीं था, या ऐसा क्यों हुआ। हम तुमको नहीं जानते, वो ये बार बार कह रहे थे। हम कौन है, हमारे रास्ते में रुकावट ना बनो, वरना जिस तरह 2 साल पहले तुमको सबक सिखाया था वैसे ही इस बार तुम्हारा दिमाग दुरुस्त कर देंगे। मज़े की बात यह है कि सर्विसेज हॉस्पिटल जहाँ जगह जगह सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, जगह जगह लगे हुए हैं, एमएस के रूम में भी ये कैमरे लगे हुए हैं जहाँ से मामला शुरू हुआ था, मगर सारी की सारी सीसीटीवी फुटेज को कानून नाफिज करने वाले इदारों और महकमे से पंजाब की तरफ से बनाई जाने वाली इंक्वायरी कमेटी, जिसका काम इस पूरे वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीक करना है और वाक़े के असल मुल्ज़मान को बेनकाब करना था, इनको ये वीडियो दी ही नहीं गई, उनको ये वीडियो फराहम ही नहीं की गई। अब यहाँ पे प्रिंसिपल महमूद अय्याज और वारिस फारूका ने अपने ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए सिक्योरिटी गार्ड को सख्ती से मना कर रखा है कि ये वीडियो किसी को भी हाथ ना लगे। अब ये हैरान कुन बात है ना
کہ इस तमाम वाक़े के सिर्फ आधे घंटे के बाद ही प्रिंसिपल साहब और प्रोफेसर वारिस फारूका क्राइम सीन MS ऑफिस आए और दोनों ने मिलकर फिल फॉर आमिर भट्ट साहब को सर्विसेज हॉस्पिटल से सस्पेंड कर दिया और सेक्रेटरी डिस्पोजल का हुक्म सादर कर दिया। अपने हिमायती डॉक्टर्स को बड़ी शाबाशें भी दी। अब ये काम बगैर किसी इंक्वायरी के हुआ, अभी इंक्वायरी नहीं हुई कोई, जो एक गवर्नमेंट का एक रूल है, क्योंकि इस तमाम वाक़े के पीछे असल मास्टरमाइंड तो ये दोनों खुद ही थे शायद। जबकि इस तमाम वाक़े में कुछ डॉक्टर्स उनके हाथों में मैं समझता हूँ इस्तेमाल हो रहे थे, खेल रहे थे। और इसके बाद प्रिंसिपल और MS ने इस सारे वाक़े के बारे में लाहौर के इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के नुमाइंदों को एडिट की हुई वीडियो दी और अपनी मन घड़त स्टोरी भी मुहैया की, क्योंकि इस वाक़े के रोनमा होने के फ़ौरन बाद ही CCTV फुटेज का वो ही हिस्सा मीडिया को दिया गया जिसमें उन्होंने ये साबित करना था कि डॉक्टर भट्ट जो थे वो सेल्फ डिफेंस में जिसको एक छुरी का इस्तेमाल करते हुए दिखाए गए, जो कि पहले से ही सिक्योरिटी गार्ड के दफ्तर में मौजूद थी और उनकी शनाख्त बहैसियत सदर YCA के उसको मस्क करने की कोशिश की गई। अब ये तो उन्होंने पूरा किया। अब उसके बाद उन्होंने इसको बिल्डअप करना शुरू किया। अब इंक्वायरी कमेटी क्या करेगी? इंक्वायरी कमेटी तो वही करेगी कि जो उसके सामने शवाहिद आए हैं वो उनके तहत देगी। तो मैं तो इंक्वायरी कमेटी को ब्लेम नहीं करूँगा, मैं गवर्नमेंट का ब्लेम नहीं करूँगा इस बात पे, क्योंकि वो उसी पे एक्ट करेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन उनको दी जाएगी, और अगर वो इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है या एडिटेड है या पूरी नहीं है तो ऑब्वियसली डिसीजन भी फिर फॉल्टी होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट में कोई भी शख्स, मैं भी अगर हूँ, अगर मैं सेक्रेटरी हेल्थ हूँ या मैं मिनिस्टर ऑफ हेल्थ हूँ, तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि मेरा ही प्रिंसिपल और मेरे ही अस्पताल का MS जो इतने सीनियर तरीन लोग हों वो इस तरह की कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलव्वस हों। बहरहाल बहुत बड़ा सीन हुआ। ये वीडियो आपको मैं दिखा रहा हूँ और अब ये वीडियो मैं WhatsApp के ऊपर सोशल मीडिया पे वायरल करूँगा इस प्रोग्राम के चलने के बाद, ताकि हर एक जो है इसको खुद देख ले, जिसको कोई भी शक हो वो आ जाए मेरे पास। आज भी मैं दोबारा अब ऑन एयर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि डॉक्टर महमूद अय्याज हों या फारूका साहब हों, आप दोनों को मैं खुली दावत दे रहा हूँ, जो मैंने आपको 2 हफ्तों से दे रहा हूँ। और मेरे पास मैसेजेस हैं, मेरे कोऑर्डिनेटर्स जो हैं शुएब वगैरह, इनके रिकॉर्डेड मैसेजेस मेरे पास हैं जो इन डॉक्टर्स को किए गए और उनको कहा गया कि ये आपके ऊपर इल्ज़ाम है, इसका जवाब हमें चाहिए। डॉक्टर महमूद अय्याज साहब असल में बड़ी एक सीनियर पोस्ट पे हैं और वो अगले महीने रिटायर होने वाले हैं। अब उनका प्रॉब्लम है कि उनके ऊपर बहुत इल्ज़ाम आ रहे हैं करप्शन के, कि उन्होंने नवाज शरीफ को किसी मेल जोल के तहत उसको पाकिस्तान से बाहर निकलने दिया, क्योंकि वो बोर्ड जिसने जाली रिपोर्ट्स बनाई थी, आप देख लें उसको हेड कौन कर रहा है। और आप देख लें कि सर्विसेज हॉस्पिटल जो है, यहाँ पे सारे जो क्रिमिनल्स जो आते हैं उनके साथ क्या ट्रीटमेंट होता है। वहाँ VVIP वार्ड्स बने हुए, वो वार्ड्स जो आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नहीं देख सकते, वो वहाँ पे बने हुए हैं। और वहाँ किस किस्म की लोगों की खिदमतें की जाती हैं, सेवा की जाती है। नवाज शरीफ की रिपोर्ट के ऊपर अगर कभी इंक्वायरी हुई तो सर्विसेज हॉस्पिटल और सिम्स की जो टॉप इंतज़ामिया हैं वो तो सबसे पहले पकड़े जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि वो हमें इस वजह से अवॉइड करें। डॉक्टर महमूद अय्याज, मैं आपको ऑन एयर कह रहा हूँ कि चलें आप आएंगे तो मैं आपसे नवाज शरीफ के मतलब सवाल नहीं करूँगा, क्योंकि मैं समझता हूँ आपसे नहीं करूँगा, लेकिन मैं सर्विसेज हॉस्पिटल के अंदर होने वाली करप्शन के एविडेंस दूंगा और वो प्रोग्राम हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे महमूद अय्याज साहब, वो हम लाइव करेंगे, ताकि ना मेरी चले ना आपकी चले, जो होगा वही लोग देखें और उनको पता चले। और अगर ये ना किया आपने तो फिर मैं मजबूर होऊंगा कि मैं खुद कंप्लेनेंट बन के नैब के पास जाऊं, उनको कहूँगा भाई ये एविडेंसेस हैं हमारे पास करप्शन के, अब ज़रा छानबीन कर लो। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।